Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear faculty member and colleague. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. जी आज आप सबको जो ये ज़हमत दी है कि हमारा जो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो उसके लिए जो है हमने एक ये वन डे ट्रेनिंग सेशन करना था, जिसमें एग्जामिनेशन के रूल, क्लास और यूएमएस और बाकी यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। तो इसके लिए मैं डॉक्टर असद साहब से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन पे कुछ जो है ना वो हमें बताएं रूल्स के बारे में। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। लेट अस स्टार्ट। डॉक्टर साहब शो हो रही है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ministry of Education was established in 2002 and it has many campuses. In the whole, there are 3 campuses. One of the township campus, which is also known as main campus. It is the session for one-day training and especially for the faculty hired on visiting basis. It has been organized by the Department of Chemistry, Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. The main objective of this session training is to develop better understanding for the improvement in quality of education. The topics to be discussed today are university rules and regulations, theme of studies, teaching methods, classroom management, assessment and evaluation. First of all, we shall go through the university rules and regulations. The medium of instruction is English. Schedule of semesters. There will be 2 regular semesters in an academic year, such as fall and spring semesters. The activities of semester will be regulated by the approved yearly academic calendar issued by the University of Education. The student attendance required. The main attendance requirement to appear in the summative examination of University of Education in a course is 75% of the classes held in that course. It means in each course, the student has to get 75% attendance presence. Any kind of leave like emergency or medical requested by the student will be considered as absence from the class. It means we shall consider only present or absent. A student having less than 75% attendance shall not be allowed to appear in the summative examination. Theme of studies. BS, MSc, MS and PhD schemes of studies are available to follow by the respectable teachers and students. Each and every teacher should have to cover
100% course outline. The teaching methods. Teaching method refers to the general principles, pedagogy, and management strategies used for classroom instruction. Choice of teaching method depends on what fits to the teacher in the provided circumstances, educational philosophy, classroom demographic, subject areas, and university mission statement. A teacher-centered approach versus a student-centered approach, high-tech material use versus low-tech material use. In teacher-centered approach to learning, teachers are the main authority figure in an instruction model. Teachers are still an authority figure in a student-centered teaching model. Teachers and students play an equally active role in the learning process. High-tech approach to learning. The high-tech approach to learning utilizes different technology aids to facilitate students in their classroom learning. Many educators use computers, internet, and instruments to facilitate the learning process of students. Whereas low-tech approach to learning undoubtedly has changed education. Many educators opt to use a more traditional low-tech approach to learning that requires a physical presence and interaction between the educator and the student. Teaching methods. Generally, in teaching of chemistry, the most feasible teaching methods are known as discovery method, hands-on activities method, experimental methods, questioning, demonstration, and these methods may be combined with lecture method. Classroom management. In classroom management, we have to consider and pay special attention to cleanliness, arrange furniture, arrangement of aviates, planning of a lesson. It plays an important role. A lesson without effective objectives is like a trip without a destination. These are the guidelines for effective lesson planning. Before beginning to write your instructional objectives, you must know what the finished product will look like. Finished product means our students. What knowledge, skills, and abilities will the students have at the end of the lesson or course? A team of teachers is required to reach the end goal. We must communicate and share the information or knowledge with each other. Each other means our colleagues. Begin by identifying the part of the goal to be achieved in the lesson you are teaching. You should have an idea of the learning task to establish for your students. It is also required to focus on our
approved scheme of studies. We have to follow strictly the scheme of studies. Provide the list of practical operators at least one day before to the lab staff and ensure the availability of operators and other requirements. Next is the assessment and evaluation. Assessment and evaluation has been divided into two main parts: formative examination, which is 40% of the total uh, assessment and evaluation, and the other part is summative examination. It has 60% participation. In formative examination, there are assignments, presentations, quizzes. These are 20%, and the midterm examination is also 20%. In summative examination, it will be conducted at the end of the semester. Modes of assessment. Students may be required to appear in quizzes, tests, presentations, group discussion, and submit project or assignment or lab reports. The course content will not deem to be substituted by presentation or assignment. Then midterm examination, summative examination. Minimum pass marks in each course shall be 50% of the overall marks. However, in all the courses where practical is involved, a student must pass the non-practical part, such as mid-semester examination, sessional, summative examination, and practical part of the course separately. For the summative examination, all the syllabus taught during the semester will be included. There will be no choice in questions in mid-semester examination and summative examination. In all the courses where practical is involved, a candidate must pass the written and practical part of the course separately. जी डॉक्टर साहब असलम साहब थोड़ा सा इस पे आप मज़ीद असेसमेंट एवेल्यूशन को ब्रीफ कर दें। जी सर मैं करता हूँ। सर सबसे पहले तो ये है कि हमारी अटेंडेंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कैंडिडेट जो है स्टूडेंट 90% उसकी अटेंडेंस है या इससे अबव है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 75 से लेस है तो वो एलिजिबल ही नहीं है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब ये हमारे पास है डिवीजन मार्क्स फॉर पेपर 3+1 क्रेडिट आवर, जो कि 4 क्रेडिट आवर का जिसे हम कहते हैं। 3 आपका होगा उसमें थ्योरी है और 1 जो है वो प्रैक्टिकल है। 3 क्रेडिट आवर का मतलब ये है कि 3 आवर वीकली जो है उसकी थ्योरी की क्लास है, और 1 क्रेडिट आवर मीन के प्रैक्टिकल उसका जो है वो 3 आवर का होता है वो होगा। तो ये उसके अंदर मिड टर्म है। मिड टर्म के अंदर जो है उसके ये डिवीजन है, तो उसमें ये होगा जो उसका है सेशनल है। ये सेशनल के हैं जो उसमें 9 नंबर होंगे असाइनमेंट के, 9 प्रेजेंटेशन के, 2 अटेंडेंस के, टोटल ये 20 हो गए। और जो उसका मिड टर्म का पेपर होगा उसके अंदर 6 MCQs होंगे, 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, 20 ये मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह ये उसका फाइनल है, मिड के बाद ये फाइनल होगा। फाइनल में ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर डिवीजन ऑफ मार्क्स है कि 2 नंबर कॉपी के हैं, 3 वाइवा के, 10 जो है वो रिटर्न है। टोटल ये 15 मार्क्स जो हैं।
और बाकी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के अंदर 13 MCQs होंगे और 1 नंबर का एक होगा, 14 जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 14 मार्क्स हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो होंगे 6 होंगे, 3 होंगे, 6 का एक होगा, टोटल 18 और ये 45 हो गए। तो ये टोटल मार्क्स जो हैं ये जो है वो हो जाएंगे 100। सॉरी, ये मेरा ख्याल है कि मैं अभी स्लाइड शेयर नहीं की आपके साथ। सर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टॉप कीजिएगा, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। मैं स्टॉप करता हूँ, आप शेयर करें। जी सर। जी सर, शो हुई स्लाइड? नहीं, अभी नहीं हुई। जी सर हुई। ये डॉक्टर साहब शेयर हो रही है। जी सर, तो ये सर अटेंडेंस है, ये 90 एंड अबव जो है उसके 2 नंबर होंगे, और अगर 75% या लेस है 75% से, तो वो स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ये डिवीजन ऑफ मार्क्स है पेपर के अंदर 3+1 की, जो मैंने अभी बताई है कि ये मिड है, और मिड के अंदर ये सेशनल हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर जो मिड का होगा उसका है कि उसमें 6 MCQs होंगे, इसमें जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 होंगे, 4 का एक होगा, 8 नंबर हो जाएंगे, ये 20 हो गए। फाइनल टर्म जो समेटिव है उसमें प्रैक्टिकल जो है वो कॉपी के 2 नंबर उसके, 3 वाइवे के और 10 उसके रिटर्न और परफॉर्मेंस के हैं, टोटल 15। और इसी तरह ये सब्जेक्टिव है, उसके अंदर 13 MCQs होंगे, 1 नंबर का एक होगा, तो ये 30 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 7 होंगे, 2 नंबर का एक, तो 14 है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 होंगे, 6 नंबर का एक, तो ये 18 हो गए। टोटल ये है हमारे पास 100 जो हो जाएंगे। इसके अंदर थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर ये एक समरी मैं यहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिड जो है वो 20 मार्क्स का होगा, सेशनल 20, उसके अंदर 9 असाइनमेंट के हैं, 9 प्रेजेंटेशन के, और अगर 100 मार्क वो 90% अटेंडेंस है तो 2 नंबर उसके हो जाएंगे। प्रैक्टिकल जो है वो 15 का हो जाएगा, और फाइनल जो है वो 45 का। पासिंग मार्क्स जो हैं, अब इसके अंदर प्रैक्टिकल और दूसरा मिड सेशनल और फाइनल, इन दोनों में से ज़्यादा पास होना ज़रूरी है। अब ये जो आपके पास मिड है, सेशनल है और फाइनल है, ये 85 बनते हैं, तो 85 में से 42.5 यानी कि 50% मार्क्स चाहिए होंगे मिड सेशनल और फाइनल के अंदर से, और 50% प्रैक्टिकल यानी कि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, उसमें 7.5 मार्क्स चाहिए होंगे। तो अगर हम इनका एग्रीगेट करेंगे 42.5 प्लस 7.5, तो ये 50% जो है ना, ये 50 बन जाते हैं। और जो सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए ये तो एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट का पासिंग का, लेकिन अगर उसका 1.7 GPA नहीं आता या इससे कम आ जाएगा तो ये स्टूडेंट प्रमोट नहीं होगा। यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होने के लिए ओवरऑल बच्चे का जो है वो जीपीए जो है वो 1.7 या इससे अबव होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल के अंदर डिवीजन ऑफ मार्क्स अगेन मैं बता देता हूँ कि रिटर्न वर्क जो होगा वो 5 नंबर का है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 की है, और ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन 2 नंबर की, वाइवा 3 का, और कॉपी या एक्सपेरिमेंटल फाइल जो है वो 2 नंबर की है, तो टोटल ये 15 मार्क्स हो गए। ये आगे डिवीजन है 3 क्रेडिट आवर कोर्स की। ये मिड टर्म है, उसमें सेम उसी तरह ये प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, अटेंडेंस, तो ये 20 हो गए, ये जो सेशनल हैं। फिर उसके बाद मिड है, यहाँ पे 6 MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे, 2 का एक हो जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 होंगे, 4 नंबर का एक, तो 8 नंबर है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, पहले पिछले में 3+1 के अंदर प्रैक्टिकल था तो 50 मार्क्स उसके अंदर एडजस्ट हुए थे, लेकिन ये सब्जेक्टिव जो है फाइनल जो है जो विदाउट प्रैक्टिकल यानी कि जो 3 क्रेडिट आर का है, उसके अंदर MCQ जो होंगे वो 18 होंगे, पिछले वाले में वो थे 13।
और यहाँ पे आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 8 होंगे, 3 का एक तो 24 हो गए, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 होंगे, 6 का एक तो ये 18 है, तो ये 60 हो गए। तो ये टोटल जो है ना ये 100 मार्क्स हो गए। अब इसमें भी सेम वही है, जो मिड के अंदर 20 हो गया, सेशनल के अंदर 20, और सेशनल के जो 20 हैं उसके अंदर 9 असाइनमेंट, 9 प्रेजेंटेशन और 2 नंबर अटेंडेंस के हैं, अगर 90% अटेंडेंस है। फाइनल के 60 हो गया। पासिंग मार्क्स इसके अंदर जो है सबको मिला के है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं इंक्लूड, तो ये 100 जो है इसमें से आपके पास जो है ना 50% होनी चाहिए, यानी कि जो 100 है इसमें से 50 बच्चे के नंबर आएंगे, तो ये यहाँ से वो पास होगा। और प्रमोट होने के लिए इसका जो ओवरऑल जीपी है वो 1.7 या इससे अबव होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये बच्चा नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा, ये पूरा सेमेस्टर रिपीट करेगा। और जब बच्चा सेमेस्टर रिपीट करता है ना, तो उसमें अगर पूरा सेमेस्टर रिपीट करता है तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रनिंग सेमेस्टर के होंगे। ये CGPA जो हमारे पास यहाँ पे है वो 4 है, जो भी बच्चे का CGPA आएगा वो आउट ऑफ 4 होगा। तो ये हम यहाँ पे अगर 90 या अबव होगा तो 4 CGPA है स्टूडेंट का। जी सर। शुक्रिया डॉक्टर, आप शेयरिंग बंद कर दें, मैं शुरू करूँ। जी सर, जी सर। जी शेयर हो रही है। यस सर। जी आमना, आप डिस्कस करेंगी कोड ऑफ एग्जामिनेशन या मैं करूं? सर जैसे आप कहते हैं। ये है जी लाइव, ये करें फिर आप, ये मैं शेयर करें आप। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सर इससे आगे मैं कंटिन्यू कर लूँ? जी कोड से, हाँ जी, कोड ऑफ एग्जामिनेशन से। Okay. The schedule of the midterm examination and summative examination shall be notified by the Controller of Examination UAE Lahore. आप सब माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड और बहुत काबिल लोग हैं, ये सब चीज़ें पता हैं आपको, आई नो, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जैसे रिफ्रेश करने के लिए नॉलेज को, और हम आपस में डिस्कस कर लें ताकि सबकी हेल्प हो जाए थोड़ा, अगर किसी को कोई पॉइंट मिस हो रहा है या भूल रहा है तो ये है कि डिटेल्स आपको डॉक्टर साहब ने भी पीछे बताई हैं, असलम साहब ने बताई हैं। तो ये कि अब जो भी इसका शेड्यूल होगा मिड टर्म सेमेस्टर का और उसके बाद समेटिव का, वो दोनों जो हैं वो कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से ही आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर शैल बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बाय द रेलेवेंट टीचर इन द टाइप फॉर्म। जो कोर्स है वो हमें टीचर ने पूरा कंप्लीट करवाना है, जो हमारी डिटेल्स दी होती हैं स्कीम ऑफ स्टडी में, और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है वो टीचर ने खुद बनाना है। जिन्होंने पेपर पढ़ाया है, जिन्होंने कोर्स पढ़ाया है, वही पेपर भी बनाएंगे। ऑल द असेसमेंट्स शैल बी कंडक्टेड बाय द टीचर टीचिंग दैट कोर्स। और जो असेसमेंट्स हैं, जो प्रेजेंटेशंस ली हैं, जो क्विजेस लिए हैं, जो भी है सब, वो सब जो टीचर पढ़ा रहे हैं कोर्स, उन्होंने ही ये सारी जो है ना ये चीज़ें कवर करनी होती हैं। जी डॉक्टर साहब चलें आगे। The marked evaluated answer scripts of the midterm examination and summative, यानी midterm की भी होंगी और summative की, दोनों के ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। shall be shown to the students by the concerned teacher and taken back immediately। आपने midterm लिए, आपने summative exam लिए, आपने उसको चेक कर लिए, आपने अपने स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर देंगे जी मैं दिखाना चाह रहा हूँ या दिखाना चाह रही हूँ, आप पेपर्स दिखाएं और उसके बाद पेपर्स वापस ले लें साथ ही। अब यू आर नॉट सपोज टू लीव द पेपर्स विद द स्टूडेंट्स, ये नहीं है, आपने दिखाया और आपने फॉर्म वापस ले। अच्छा,
Teachers will upload and submit the result in time without any delay. आप सब ऐसे ही करते हैं, तो ये बस सिर्फ थोड़ा सा दोबारा से चीज़ों को हम ताकि कर ले कि हमने जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं हमने उसको फ़ौरन अपलोड करना होता है। ये एक ग्रेडिंग पॉलिसी जो जर्नल हमारे 2019 ऑनवर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें दी हुई है कि A+ अगर आप ग्रेड है स्टूडेंट का, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 90 हो या 90 से ऊपर हो, तो उस सूरत में जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स बनेंगे, उसका GPA जो है वो 4 बनेगा। अगर 80 से 89 के बीच में है तो वो 3.5, यानी 80 पे 3.5 है और 89 पे 3.95 है, ठीक हो गया। और जो ग्रेड बनेगा वो A बनेगा। इन केस द स्टूडेंट्स जो भी आपके हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं 70 और 79 के बीच में, तो सूरत में उनका जो ग्रेड पॉइंट्स हैं या GPA है वो 3 से 3.45 और ये ग्रेड जो है ये B बनता है। इसी तरह से C के लिए 60 से 69 की रेंज में है तो C बनेगा एंड द GPA 2.5 to 2.95, 50 to 59 दैट इज D एंड बिलो 50, क्योंकि हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया भाई कि हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं, तो 50 से अगर नीचे हैं तो दैट विल बी एन F, राइट। और जो ग्रेड है उसके लिए वो 0 का। जी डॉक्टर साहब, आई होप आवाज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज में? ठीक है जी मैडम, क्लियर है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स फाइल्स। Maintaining the course file is compulsory for all the faculty members. It should have complete record of every activity that happens during the course, during the semester, right? Excuse me. अच्छा जी, इसमें ये है कि what you have to maintain is first of all you must be knowing the course code and the title, the complete title, the exact title and the exact course code which you are teaching. Then description of the course, learning outcomes. आपका जो कोर्स है उसके ऊपर लर्निंग आउटकम्स यूजुअली मेंशन्ड होते हैं, अगर आप देखें ना तो होते हैं। और अगर आप खुद से, जाहिर बात है माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट लोग हैं, तो अगर आपके जहन में कोई और भी उसके आउटकम्स है तो उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर जहन में रखें। कोर्स सिलेबस वो आपने हमेशा हमने सामने रखना होता है, बिकॉज वी आर सपोज टू कवर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, मतलब सारे टॉपिक्स हमने कवर करने होते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, कोर्स फाइल के अंदर आपके पास दैट इज रिकमेंडेड कि इफ़ यू आर कीपिंग अ वीकली टीचिंग शेड्यूल, और उसके अलावा आप जो भी जो हमारे सेमेस्टर का जो ब्रेकअप होता है डेट्स का, कि इसको स्टार्ट होगा ये वाला टाइम मिड टर्म से पहले होगा, इन डेट को मिड टर्म स्टार्ट होंगे, इसके बाद फिर आपने अपना कोर्स वर्क स्टार्ट करना है, इसके बाद इन डेट्स पे आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, वो यूजुअली आपको स्टार्ट में ही दे दिया जाता है, पता होता है, मिल जाता है। तो आपने अपने जहन में रखना है कि डेट्स क्या है मिड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, और आप कितना कोर्स है जो आपने उससे पहले कवर करना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको प्रॉपरली थोड़ा जो है वो शेड्यूल कर लें। ओके, उसके बाद आपने अपनी कोर्स फाइल जो है उसके अंदर आपका जो भी आपने मिड टर्म एग्जाम लिया है उसकी जो क्वेश्चन पेपर है उसकी कॉपी आपने रखनी होती है। उसके बाद जो आपका समेटिव फाइनल एग्जाम है उसकी भी क्वेश्चन पेपर की कॉपी आपको उसमें रखनी होती है। ग्रेडिंग शीट ऑफ द कोर्स डिटेलिंग स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन द ग्रेड्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। अभी पीछे थोड़ा ग्रेडिंग डिटेल आपने देखी है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो रिटन फॉर्म में या कुछ भी, तो प्लीज़ आप ज़रूर ले सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये हमेशा अच्छा होता है कि हम पूरी डिटेल अपने पास रखें, तो जो भी ग्रेडिंग की शीट है वो आपके पास हो और आपको पता हो कि आपके स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए तो उसका ये ग्रेड बनने वाला है, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे। डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा जी, सम यूजफुल टिप्स रिगार्डिंग टीचिंग प्रैक्टिस। हम नो बॉडी के मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या है, लेकिन ये है कि दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट इन अपनी, अगर आपने याद हो तो स्टार्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि हमारे पास जो टीचिंग मेथड्स हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक था टीचर बेस्ड, एक था स्टूडेंट बेस्ड, एक था हाई टेक, एक था लो टेक। अच्छा, अब आपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चूज कर लिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप हाई टेक करने जा रहे हैं, आप लो टेक करने जा रहे हैं।
आप स्टूडेंट बेस्ड करने जा रहे हैं, टीचर बेस्ड, यूजुअली अब हम ये करते हैं कि मिक्स्ड इसको रखते हैं, ना प्योरली टीचर बेस्ड होता है ना प्योरली स्टूडेंट बेस्ड होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो फोकस होता है वो तो स्टूडेंट की लर्निंग है ना। लेकिन जाहिर सी बात है टीचर इज मेन फिगर जिसने सारी चीज़ें लेके चलनी है, तो आपके पास जो जो फैसिलिटीज मौजूद है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आपने चूज कर लिया कि आपने किस तरह से पढ़ाना है। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये होता है कि आप देखिए, नोटिस करें कि अगर फर्ज करें आपकी क्लास में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो क्लासेस मिस कर रहे हैं, या कोई इस तरह का आपको फील होता है कि कोई वजह है, तो थोड़ा सा फिगर आउट कर ले कि क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी कोई ऐसी वजह हुई है कि मैं कह रही हूँ कि मेरे लेसन्स जो हैं वो इररेलेवेंट है, यानी जो टॉपिक कोर्स में दिया हुआ है मेरे लेसन्स उसको ठीक से कवर नहीं कर रहे। तो इस सूरत में भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, तो फिर क्या करना है, हमने थोड़ा फोकस कर लेना है कि लेसन्स प्योरली मेरे कोर्स को कवर करें, जो कोर्स डिटेल्स हैं उसको कवर करें। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स डोंट फील द टीचर केयर्स, ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके स्टूडेंट्स ये फील करें कि टीचर केयर नहीं करता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा ऐसे पढ़ाते हुए क्लास में, स्टार्ट की बात है, तो पढ़ाना शुरू किया, तो क्लास में जैसे आप जाते हो नए नए, तो मैं थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, तो मैं उन्हीं को देख के जी बात कर रही हूँ। तो एक दो स्टूडेंट्स ने, कुछ दिन के बाद मैंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम या कुछ, तो एक दो स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर किया और उसने मुझे कहा कि टीचर आप सिर्फ ये वाली जो अगली लाइन से इनको देखती हैं, पीछे को देखती नहीं है। तो आई सेड ओह ओके, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हमेशा ये अच्छा फील करते हैं कि हर स्टूडेंट पढ़ाते हुए आप सबको देख रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, आप सबको फोकस कर रहे हैं। ज़रा क्लास अटेंटिव रहती है और वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है उस तरह से। डिस्कशंस अगर आप इनकरेज नहीं करते, आप सिर्फ पढ़ा के निकल आ रहे हैं क्लास से, तो जाहिर सी बात है वो भी फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा डिस्कशंस वाला टाइम भी रखें ताकि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकें आपकी लेक्चर में और लर्निंग प्रोसेस में। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। Students are asked to follow directions and may not ask why. अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस देते जा रहे हैं कि ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, और दे आर नॉट परमिटेड कि वो ये पूछ सकें कि ये क्यों हो रहा है, यानी आप कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम आता है। आपने कोशिश करें कि इंटरेक्ट करना है स्टूडेंट्स के साथ, डिस्कशंस करनी है, उनको क्वेश्चंस पूछने की हम हमेशा इजाज़त दें, ताकि ये कि वो प्रॉपरली, क्योंकि बेसिक फोकस तो स्टूडेंट की लर्निंग है ना, तो उसमें वो इन्वॉल्व है। डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा जी, as well as for BS, MSc, MS courses to be taught in fall 2021, ये वो कोर्सेज हैं जो इस दफ़ा मतलब हम पढ़ाएंगे, पढ़ने हैं स्टूडेंट्स ने। अच्छा जी, ये है जी सेमेस्टर 1 के लिए, BS सेमेस्टर 1 के लिए, तो जो है ये हमेशा अवेलेबल होती है स्कीम ऑफ स्टडी। अगर आप लोग डॉक्टर काइंडली मैं ये शेयर करता हूँ स्कीम ऑफ स्टडी जी ना। प्लीज, जी प्लीज प्लीज प्लीज, जी थैंक यू। ये जिस सर स्क्रीन शेयर होगी मेरी? नहीं, अभी नहीं हो रही। अब हो रही है। सर सबसे पहले तो ये मैं जो है हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो शेयर कर देता हूँ। जी विजिबल है?
ठीक है डॉक्टर साहब, विजिबल है जी, ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है फॉल 2021 से स्प्रिंग 2022। ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है नवंबर 8 मंडे से जो है, और उसके बाद ये हमारे दरमियान में ये वीक हैं। ये अमूमन जो है मिड सेमेस्टर जो है वो आफ्टर ये 8 वीक जो है ना वो आता है, यानी कि आफ्टर 2 मंथ जो है वो हमारा मिड होगा। तो मिड सेमेस्टर जो है जनवरी 3 to 7 जो है मंडे टू फ्राइडे ये होगा आफ्टर 8 वीक। इसके बाद ये रिजल्ट वगैरह जो है ये अपलोड करने हैं यूएमएस के ऊपर है। तो यूएमएस के लिए रिजल्ट अपलोड करने के लिए आप लोगों का लॉगिन उस पर बना हुआ होगा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपने किस तरह उसको जो है ना वो अपलोड करना है। देन ये हमारा वैल्यूएशन आ जाएगा जनवरी टू फरवरी जो है ना 31 से 11 जो है मंडे टू फ्राइडे टीचर इवेल्युएशन है बाय द स्टूडेंट। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के अंदर से डॉक्टर सैयद सलमान शफकत साहब हैं जो ये टीचर इवेल्युएशन करवाते हैं। तो उसमें इस वीक के अंदर जो है वो बच्चों को कहा जाता है कि उनको एक लिंक दिया जाता है कि इस पे जाके आप लोगों ने जो है ना वो टीचर इवेल्युएशन कर देनी है। तो उसके बाद ये हमारा फरवरी 25 को जो है वो फ्राइडे पे एंड ऑफ क्लासेस है फॉल 2021 की, और उसके बाद समेटिव एग्जाम जो है हमारा वो होगा ये फरवरी और मार्च का 28 से 5 मार्च तक जो है मंडे टू सैटरडे ये समेटिव एग्जाम है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फॉल 2021 जो है ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा 5 मार्च को जो सैटरडे पे। और फिर इसी तरह इसका जो रिजल्ट है ये उसमें हमने अपलोड करना है यूएमएस के अंदर। और बी केयरफुल इसके अंदर जो है ना लास्ट टाइम हमारी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मिस्टेक हुई है कि बाद बच्चे जो होते हैं ना जो कोर्स रिपीट कर रहे होते हैं वो अगर मॉर्निंग का बच्चा है तो वो इवनिंग के अंदर रिपीट करता है, और इवनिंग का बच्चा है तो वो मॉर्निंग में रिपीट करता है। सपोज एक बच्चा मेरे पास जो है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहा है और वो बच्चा कोर्स रिपीट कर रहा है इवनिंग के अंदर जाके, और मैं ये कोर्स मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट जो है ना वो मेरे पास तो नहीं आएगा, लेकिन स्कीम जो मेरे पास यूएमएस के ऊपर लिस्ट शो होगी उसके अंदर आएगा, लेकिन उसने रिपीट नहीं किया मेरे पास। तो इस तरह के केसेस जितने भी होंगे तो उनके से रेलेवेंट आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है नंबर एंटर करने से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें काफ़ी हुआ है कि वो उसमें ज़ीरो लगा के या उसको एब्सेंट करके ना तो वो रिजल्ट जो है ना वो सबमिट हुए हैं। तो इस तरह की काइंडली जो है ना वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो पहले क्लियर कर ली जाएं। तो देन उसके बाद हमारा जो है वो मार्च 14 से जो है ना ये स्प्रिंग 2022 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह ही आफ्टर 4 वीक हमारा इसका मिड हो जाएगा। मिड आपका जो है इसमें क्लासेस हैं, लास्ट डेट ऑफ द मार्च अप्रैल ये आ जाएगा मिड आपके पास, ये मई 16 to 21 जो है ये मिड होगा। और इसी तरह मिड के बाद हमने जो मिड का रिजल्ट है वो उसमें एंटर करना है। अच्छा, मिड के रिजल्ट जो एंटर करना आपने जस्ट मिड के मार्क्स एंटर करने हैं, जो आपके पास है सेशनल वो एंटर नहीं करने, वो आपने एंटर करने हैं फाइनल के साथ। ये हमारा फाइनल होगा जुलाई 8 फ्राइडे जो है एंड ऑफ क्लासेस होंगी, और इसके बाद जुलाई 11 to 16 जो है ये मंडे टू सैटरडे समेटिव एग्जाम होगा स्प्रिंग 2021 का। तो इसके बाद आप इसके वो नंबर एंटर करेंगे, समेटिव के करेंगे, प्रैक्टिकल के करेंगे, सेशनल के करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एकेडमिक जो स्प्रिंग फॉल 2021 और स्प्रिंग 2022 जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है, ये मैंने शेयर कर दिया है, इसमें सारी डिटेल दी हुई है फर्दर। अब अगर हम अपना स्कीम ऑफ स्टडी को देखें तो ये हमारी रिवाइज स्कीम ऑफ स्टडी है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये अभी एकेडमिक कैलेंडर मैंने व्हाट्सएप के अंदर ना शेयर कर दिया सबके साथ जो है ना। तो ये हमारी स्कीम ऑफ स्टडी है जो इसमें फॉल 2021 के अंदर हमने इसको फॉलो करना है। ये मैं आपको शो करवा देता हूँ जो हमारा सेमेस्टर वाइज जो ब्रेकअप है। ये
सेमेस्टर 1 का है, इसके अंदर ये हमारे कोर्सेज हैं, फंक्शनल इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, मैकेनिक्स 1, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1, कैलकुलस 1, फंडामेंटल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अगेंस्ट ये इनके सामने जो इनके क्रेडिटार हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो कोर्स है ना, ये वाला नॉन मुस्लिम के लिए है, एथिक्स जो है, और ये डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और मैकेनिक्स, और इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ और कैलकुलस 1 है। इनमें से अगर जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं वो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ लेंगे, और अगर हमारे पास प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है तो वो मैकेनिक्स 1 और कैलकुलस 1 जो है वो लेगा। इसी तरह फिर उसके बाद हमारा सेमेस्टर 3 आ जाएगा। तो सेमेस्टर 3 के अंदर हमारे ये कोर्सेज हैं, टेक्निकल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, एजुकेशनल असेसमेंट, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1, एनिमल डाइवर्सिटी 1, कैलकुलस 3, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस। तो सेम जो जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था कि उसमें अगर प्री मेडिकल का बच्चा है तो ये जो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन लेगा, और साथ में एनिमल डाइवर्सिटी 1 जो है ना, एनिमल डाइवर्सिटी 1, और अगर प्री इंजीनियरिंग का है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 और साथ में कैलकुलस 3 लेगा। ये जो शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस है, ये सेमेस्टर के एंड पे जो है ना वो दूसरे सेमेस्टर के बाद जो है ना वो जो बल्कि थर्ड सेमेस्टर के बाद जो है ना बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं। ये नॉन क्रेडिट आर की है, इसमें जस्ट हमने बच्चों ने अगर किया है तो उसको पास फेल जो है ना वो मेंशन करना होता है यूएमएस के ऊपर। तो उसके बाद हमारा ये आगे आ जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हमारे पास ये कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, क्वांटम केमिस्ट्री एंड गैस फेज इक्विलिब्रियम, एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री और शॉर्ट टर्म टीचिंग प्रैक्टिस। ये यहाँ पे भी फिर हमारा जो है ना ये नॉन क्रेडिट आर का कोर्स है। इसमें भी जस्ट हमने इसको स्टूडेंट को पास फेल ही मेंशन करना है कि उसने टीचिंग प्रैक्टिस की है। तो अगर उसकी यहाँ पे इसकी भी जो टीचिंग प्रैक्टिस है 1, 2 जो है ना, इसकी हम बाकायदा कमेटी है तो उसकी जो एवेल्युएशन होती है कि बच्चों ने जो है ना वो टीचिंग प्रैक्टिस जो की है उसकी जो उन्होंने असाइनमेंट वगैरह जो वो यहाँ पे सबमिट करानी होती हैं। तो वो एवेल्युएशन के बाद फिर उसका जो है ना वो क्रेडिट देते हैं कि ये पास है या फेल है। देन उसके बाद हमारा सेमेस्टर 7 आ जाएगा। अब 7th सेमेस्टर जो है या एमएससी का, इस साल हमारा एमएससी का 3rd सेमेस्टर भी होगा और 4th भी होगा। तो नेक्स्ट ईयर चूंकि इस दफ़ा एमएससी में हमारे पास एडमिशन नहीं है तो एमएससी हमारे पास नहीं होगी। तो ये जो हमारा यहाँ पे इस दफ़ा जो स्पेशलाइजेशन है 7th सेमेस्टर के अंदर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और साथ में एनालिटिकल है। तो इनऑर्गेनिक के अंदर जो 7th सेमेस्टर में हमारे पास कोर्सेज होंगे या एमएससी 3rd सेमेस्टर जो इनऑर्गेनिक होगी उसमें इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, पाई एक्सेप्टर लिगेंड एंड पॉलीमर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देन इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 है। जो बच्चे रिसर्च नहीं करेंगे वो जो है यहाँ पे सेमेस्टर 7th के अंदर जो है ना वो इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 कोर्सेज यहाँ पे रखे हुए हैं, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का है और एक फिजिकल टेक्निक इन बायोकेमिस्ट्री है। तो ये 2 कोर्सेज बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसी तरह आगे ये ऑर्गेनिक इस दफ़ा हमारे पास स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं हो रही, एनालिटिकल है। तो एनालिटिकल के अंदर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है, एडवांस सेपरेशन टेक्निक है, और साथ में इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 ये वही होगा। इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 जो ऊपर मैंने इनऑर्गेनिक के अंदर बताया से वही आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेमेस्टर 8 होगा। तो सेमेस्टर 8 के अंदर फिर बच्चे जो है ना वो 3 कोर्सेज पढ़ेंगे अपने स्पेशलाइजेशन के, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनोमेटालिक्स, मिट्टी एंड मैग्नेटोकेमिस्ट्री, रेडियो एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा, और यहाँ पे स्पेशल पेपर आ जाएगा। अच्छा वो जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव 1 और 2 वो सारे बच्चे पढ़ेंगे। सॉरी ये मैं थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी कि इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 जो हैं वो सारे बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो स्पेशल पेपर है, अगर बच्चे ने रिसर्च नहीं रखी तो वो स्पेशल पेपर 1 और स्पेशल पेपर 2 पढ़ेगा 8th सेमेस्टर के अंदर।
और अगर उसने रिसर्च रखी है तो वो अपना थीसिस यहाँ पे कंप्लीट करेगा, रिसर्च वर्क करेगा और अपना थीसिस करेगा। ये 6 क्रेडिट आवर का। तो 6 क्रेडिट आवर अगर उसने थीसिस नहीं, यानी उसका रिसर्च नहीं है, तो ये 2 स्पेशल पेपर पढ़ेगा 3-3 क्रेडिट आवर के। और अगर रिसर्च है तो 6 क्रेडिट आवर का वो थीसिस कंप्लीट करेगा यहाँ पे। क्लियर के इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 अगर उस दोनों केसेस में रिसर्च रखी है या नहीं रखी, उसने इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 पढ़ना है। और अगर उसने रिसर्च रखी है तो 8 सेमेस्टर के अंदर वो थीसिस करेगा 6 क्रेडिट आवर का। और अगर उसने रिसर्च नहीं केमिस्ट्री के कोर्सेज में ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मल एनालिसिस, न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक, फूड एंड ड्रग एनालिसिस, और फिर ये स्पेशल पेपर 1 और 2 और साथ में थीसिस होगा। तो यहाँ पे बच्चे की जो क्रेडिट आ रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी। ये इलेक्टिव कोर्स या स्पेशल पेपर, ये एक टेबल है, इसी के अंदर से जो है ना हम लोगों ने इसको देने होते हैं जो स्पेशल पेपर या फिर जो है इलेक्टिव है। तो इस दफ़ा जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं सेमेस्टर 7 के अंदर जो इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 है, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड पोल्यूशन कंट्रोल और साथ में फिजिकल टेक्निक इन बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे क्रेडिट आवर पूरे हो जाएंगे, डिग्री उसकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्दर अब ये आगे अगर आप इसको देख लें तो ये हमारी आउटलाइन जो है हर एक कोर्सेज की जो है ना वो अवेलेबल है। ये हमारी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये सारी स्ट्रीम ऑफ स्टडी, रूल एंड रेगुलेशन अगर आप देखें तो ये मैं आपको शो करवा देता हूँ कि ये हमारे रूल एंड रेगुलेशन है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उसके ऊपर ये रूल एंड रेगुलेशन है और इसी के साथ ही ये नीचे जो है ना हमारी ये स्कीम ऑफ स्टडी है। अगर इसको आप ओपन करें स्कीम ऑफ स्टडी को तो ये जो है ना यहाँ पे ये आर्ट्स है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट साइंस और ये साइंसेज है। हमारा चूंकि साइंसेज है तो इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपके ये सारे कोर्सेज जो है ना ये सारी स्कीम ऑफ स्टडी पड़ी है। ये बीएस केमिस्ट्री रिवाइज है 2018 जो कि हमारी इम्प्लीमेंट है यहाँ पे, और इसी तरह ये एमएस की है और साथ में नीचे जो है ना वो पीएचडी केमिस्ट्री की भी हो गई ये वाली जो है। क्लियर हो गया? जी ये हमारे जो कोर्सेज स्पेशलाइजेशन ऑफर हो रही है इस दफ़ा बीएस और एमएससी के अंदर वो इनऑर्गेनिक एनालिटिकल की है और ये कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, आगे जो है वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। जी आवाज़ आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब आ रही है, ठीक है। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, देख लेते हैं कनेक्शन उनका हो जाए। हम ना उतनी देर हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप बता दें। हाँ जी, क्योंकि मेरा ख्याल है असलम साहब का माइक भी ऑफ है। अच्छा जी, आ गए हैं सर? आ गए जी, ठीक हो गया। असलम साहब नहीं, चलो मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जी जरूर। शेयर हो रही है आमना? जी सर। सर लेकिन ये वाली तो स्लाइड्स दिखा ली ना डॉक्टर असलम साहब ने, इन्होंने यहाँ पे मैंने ये इस पे लगाई थी।
हाँ जी, लेकिन उन्होंने उधर से ही दिखा दी हैं, तो ये बेशक आप स्किप कर दें। कंक्लूडिंग मार्क्स। जी सर, तो वो तो प्लीज आप ही देना, ये डॉक्टर अच्छा हबीब चलो साहब दे ठीक दें, है, मैं क्या दूंगी। शुक्रिया। The primary purpose is to provide a learning environment in which faculty, staff, and students can discover, examine, critically preserve, and transmit not only knowledge of chemistry but also the wisdom and values that will help to ensure the survival of students and improve the quality of life for all. No house is open for questions. You may ask questions. जी किसी का कोई सवाल हो, कोई डिस्कस करना चाहता हो, आपको इनपुट देना चाहता हो तो हाउस ओपन है। Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. अच्छा, ये स्टार्ट में हम नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर मौजूद हैं वो वन बाय वन इंट्रोडक्शन करा दें, अपना नाम और स्पेशलाइजेशन, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहें तो वो बता दें, और उसके बाद जो उनके माइंड में अगर कोई पहले से जो पढ़ा रहे हैं उनके माइंड में कोई अगर क्वेश्चन है, कोई बात क्लियर करना चाह रहे हैं तो वो डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर इसको फर्दर जो पॉइंट्स रह गए उनको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो वन बाय वन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी मैं डॉक्टर नवीद अहमद जी विजिटिंग फैकल्टी में हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी स्पेशलाइजेशन है, और इधर मैं आपके साथ काफ़ी अरसे से एज ए विजिटिंग फैकल्टी मूव कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि आज का जो सेशन है बड़ा ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत सारी बातें जो कि हम इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं एकदम फ्रेश हुई हैं और ये चीज़ें हमें क्लियर हुई। तो एज सच मेरे जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो सब चीज़ क्लियर हो गई है। तो ये जैसा आपने कहा तो मैंने कहा चले इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, थैंक यू डॉक्टर सर, आपका शुक्रिया। तो पर्पस तो यही है, वीसी साहब का भी ये ख्याल था कि इसमें जो यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे जो चीज़ें हमने कन्वे करनी चाहिए या जो हमें बतानी चाहिए वो हम एक गैदरिंग में, एक सिटिंग में बता दें। वैसे तो हम थ्रू आउट द सेमेस्टर अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। अगर कोई भी इशू है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्लैरिटी है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जाहिर है जो जो चीज़ें सेमेस्टर के स्टार्ट में अगर इस तरह क्लियर हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमारा पर्पस भी यही है। तो बाकी सर ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला सेशन लेके जी। सर कुछ चीज़ और क्लियर करनी, वो एक्चुअली नेट चला गया था हमारे इधर मेरी साइड से। हाँ जी, हमने जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वन बाय वन। राइट डॉक्टर नबीस साहब ने करवाया है, तो अब नेक्स्ट आप देखें कौन है जी। आप खुद ही स्टार्ट कर लें जी, नेक्स्ट जो भी है। हाँ जी। Assalamu alaikum. I am Dr. Asma Mukhtar and my specialization is in organic chemistry. एक सेमेस्टर मैंने यहाँ पे विजिटिंग पे पढ़ाया है, इंशाल्लाह आई होप सो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। लास्ट टाइम जो सेमेस्टर था वो तो थोड़ा आउट ऑनलाइन था, तो अभी ये चूँकि ऑन कैंपस होना है तो काफ़ी कुछ जो है ना समझ आ गई, कैसे जो है करना कैसे नहीं करना। एक दो चीज़ें सॉरी वो मैंने पूछनी थी कि जो कोर्स फाइल है ये हम खुद वहाँ पे आके लेंगे
जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगी प्रॉपर आपकी तरफ से फाइल मैडम उसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी ना वो आप बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है। और दूसरा कि हमारी टाइमिंग्स कोई फिक्स है या फिर जब क्लास लेनी हो तब हम आएँ और आके लेकर चले जाएं विजिटिंग फैकल्टी के लिए? जी, जब आपकी क्लास हो आप आएँ, क्लास लेके आप फ्री हैं। सही। और जो हमारी जो अटेंडेंस है उसके लिए प्रॉपर कोई शीट्स वगैरह होंगी कि? मैडम ये 105 में आपका रिकॉर्ड होगा सर अटेंडेंस का। अच्छा, तो जब हम क्लास लेने आए वहाँ पे आके अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे, उनको जी बता दें? बिल्कुल, अटेंडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने अपनी वो क्लास की फाइल भी उधर से लेनी होगी और उधर ही आपने अटेंडेंस मार्क करनी होगी 105 में। ठीक हो गया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज अ गुड, थैंक यू। जी मैडम हुमा चिम्मा। Assalamualaikum to everyone. Myself Huma Akram Chima and my field of specialization is inorganic analytical chemistry. And I am here for the first time as a new faculty member, and it is very nice that this meeting is very helpful for me in near future. Thank you so much. थैंक यू। जी मैडम मलिहा अस्सलाम उमर। वालेकुम। जी सर, जी सर, डॉक्टर नईम साहब। डॉक्टर मोहम्मद नईम खान मेरा नाम है सर। मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक भी है और एनालिटिकल भी है। आप लोगों के साथ काफी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो बड़ी इंफॉर्मेटिव आज डॉक्टर साहब आपने जो सेशन ये दिया है, ये सारी चीजें रिफ्रेश हो गई और कुछ एक चीजों में कोई कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया। माशाल्लाह ये बड़ा आपका अच्छा इनिशिएटिव है नए आने वालों के लिए भी और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी स्पेशली। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच। Thank डॉक्टर बिलाल शाहिद काजी साहब। Assalamualaikum sir. I'm Dr. Bilal Shahid Qazi. My specialization in material chemistry and branches out to the different fields, organic, inorganic, and physical analytical chemistry. मैं फर्स्ट टाइम आपसे काम कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हुई है और सेशन बहुत यूजफुल था सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। जी मैडम डॉक्टर मलिहा उमर। डॉक्टर मोमना फेरोज। Assalamu alaikum everybody. My name is Momina Firoz and my field of specialization is analytical chemistry, and this is going to be my first experience, and I am very thankful to the Dr. Habibur Rahman for giving me the chance to teach in your university, and the session was very helpful and very good. It helped me a lot, and I think it will help me in teaching and to meet the standards. And thank you so much. जी डॉक्टर सदर मुताहिर। डॉक्टर सदीक मुताहिर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर अमजद साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी डॉक्टर अमजद साहब। चलें डॉक्टर साहब आप चेक कर लें कि जो ऑनलाइन थे हमारे साथ उन सब ने बता दिए अपने बारे में, इंट्रोडक्शन हो गया तो फिर मिस समरा नजम रह गए। हाँ जी मिस समरा नजम। डॉक्टर अमजद साहब शायद ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम माई सेल्फ डॉक्टर अमजद भट्टी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन तो वैसे मेरा ऑर्गेनिक है, बट आई हैव सक्सेसफुली टॉट फिजिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ऑल द अदर ब्रांचेस एज वेल।
तो माशाल्लाह आप लोगों का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बिल्कुल आपने इसको स्टार्ट ऑफ द सेशन पे किया। इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे भी जो जहन में प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन थी दैट हैव बीन क्लियर्ड, और स्टार्ट पे जब होता है फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की फुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे और स्टूडेंट्स दोनों के हक में बेहतर है, ताकि हम इस सेशन को एक प्रोडक्टिव सेशन बना सकें ये जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना है। सो दिस इज माय व्यू पॉइंट। और सर कोई चीज? जी सर, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। डॉक्टर साहब। समरा नजम है सर। मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड मैं आप लोगों के साथ 2017 से वर्क कर रही हूँ और मुझे थ्रू आउट दीज ईयर्स बहुत गाइडलाइंस मिली हैं, उसके लिए जज़ाकल्लाह लॉट। और ये सेशन भी बहुत यूजफुल रहा है, रिफ्रेश हुई हैं बहुत सी चीज़ें। एक पॉइंट सिर्फ थोड़ा सा मुझे ये कोर्स फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लियर करना था। जो वीकली कोर्स हमने इसके अंदर जो वीकली टीचिंग प्लान जो हमने बताना है, तो क्या वो प्रॉपर जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल्स बतानी है या वो क्या है, उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर दें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लियर। सॉरी मैडम, एक दोबारा बताइएगा। ये जो कोर्स प्लान हमने वीकली जो इसमें कोर्स फाइल में बताना है, वो क्या हमारा जो टॉपिक्स होंगे जो वीक में हम पढ़ाएंगे उनके टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें पुट करनी है, या जो आपका जस्ट सिंपली आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर दे कि उसमें क्या आप डॉक्टर अमन असगर काइंडली। जी हाँ जी समरा, बेसिकली जो ये वीकली प्लान का मकसद है ना, वो ये है कि वी कैन बी मतलब मैनेज ये जो हमारा जो कोर्स डिटेल्स हैं उनको हम टाइमली ख़त्म कर सकें। यानी ये ना हो कि हमने प्रॉपरली वो किया हो, क्योंकि प्रेजेंटेशंस भी होती हैं तो एट टाइम्स ऐसे मैंने देखा है कुछ लोगों का कि अभी कोर्स ख़त्म नहीं होता, प्रेजेंटेशन रहती होती हैं, प्रेजेंटेशंस मिस होती हैं। तो बेसिक मकसद इसका ये है कि जब आप वीकली आपने प्लान किया होगा, बेसिक थीम जो इसके पीछे जो वो ये है कि आपने कहीं प्रेजेंट नहीं करना। यानी जिस तरह से वो लेसन प्लान्स बनाए होते हैं एजुकेशन में लोगों ने, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, राइट। इसका बेसिक मकसद ये है कि आपने एक पूरे टॉपिक्स को देख के टोटल कितने वीक्स हैं और आपने एक बनाया हो कि ये वाले वीक में मैं ये टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ, ये वाले वीक में मैं ये वाले टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ, ताकि इन टाइम आपकी सब चीज़ें अच्छे से ख़त्म हो सके। बेसिक ये है। ठीक, थैंक यू मैम, इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो इसको आप जैसे भी मैनेज करना चाहें, मतलब यू आर फ्री टू डू इट, इसमें कोई ये नहीं है, कोई लिमिट। थैंक यू, यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर सदफ मताया है। वॉइस इज क्लियर फ्रॉम माय साइड नाउ? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। I'm Dr. Sadaf. My field of specialization is organic medicinal and nanomaterials. And I just want to ask a question here. You people tell us about that. The presentation topic should not be from the syllabus. So, Ma'am Amna, can you just tell us or guide us how can we maintain the content of the syllabus through presentation and assignments? No. नहीं, I'm sorry, अगर किसी बात से आपको ये फील आया है, नहीं देखें, फील नहीं आया, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों ने कहा है कि जो आपके प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के टॉपिक्स हैं दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो फिर वो क्या होंगे? शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस मैडम, शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेबस है ये, शुड बी। हाँ जी, इसमें ना आप ये कर सकते होते हैं। देखें, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हबीब साहब मौजूद हैं, वो भी हमें गाइड कर देंगे इस पे। लेकिन मेरा जो होता है तरीकाकार वो ये होता है कि मैं करवाती हूँ, कोर्स खुद कवर करवाती हूँ, मैंने कभी स्टूडेंट्स पे नहीं छोड़ा। उसके बाद ये होता है कि उन स्टूडेंट्स को मैं ये कह देती हूँ कि जाहिर सी बात है कोई एक टॉपिक है, कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल FTIR है, मैंने उसको कवर करवा दिया, लेकिन पूरी एक वर्ल्ड है जो मजीद एक्सप्लोर की जा सकती है। तो मैं कहती हूँ ये मैंने करवा दी है, अब आप इस पे प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट आपने करनी है, तो आई नीड सम मोर डिटेल्स, more fine details. Yes, so this is my that's okay. Actually, I maybe it's wrong from my side. I heard that should not be that. That's why I asked this question. Otherwise, the meeting is very helpful. And one more thing that regarding marking scheme.
how can we control the marks? Like if you people say that it should be 90 or more than 90, then GPA will be 4. Then what is the criteria of UE for this marking? That is this okay to get full marks or we have to control the marking? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप पेपर जब बनाते हैं ना तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन तो चले हो गया ना कि एक नॉर्मल बच्चा कर ले, फिर उसके बाद थोड़ा सा और करें कि जो अगला बच्चा जिसने को थोड़ा सा और पढ़ा वो करें, और फिर उसके बाद आगे करें कि जो अगला वो पार्ट वो बच्चा करे जो फुल सिलेबस पढ़ के आया है। तो ये जब आप फाइनल हम लेते हैं ना तो फाइनल में किसी सूरत में भी मिड का सिलेबस जो है ना वो एक्सक्लूड ना किया करें, वो शामिल किया करें। और बाज सॉरी टू से कि बाज ऐसा भी सुनने में आता है कि वो टीचर्स कह देते हैं कि जी ये मिड हमने निकाल दी है, और बच्चे वो ऐसे हैं कि स्टूडेंट कभी भी वो इस चीज़ का नहीं करते, वो अगले टीचर को जाके नाम बता के कह देते हैं कि फलां टीचर ने तो वो मिड निकाल दिया है, या उन्होंने कहा कि ये एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मिड शुड बी द पार्ट ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फाइनल? कितना परसेंटेज होना चाहिए? डॉक्टर असद साहब वो कितना है? मेरे ख्याल 25% है सर। जी तकरीबन 25%। जी 25% फाइनल में जो है ना वो इंक्लूड करें, और उसमें वो पार्ट आप शामिल करें जो पहले आपने मिड में नहीं पूछे। जी ऐसे पार्ट मिस हो जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक वो वहाँ पे शामिल करें, या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है। सर ये मेरा क्वेश्चन था कि हमें मार्किंग, जैसे आप लोगों का 90 पे A+ है तो मार्किंग को हमें कंट्रोल करना होगा, या फिर यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि फिर वो ज़्यादातर बच्चे शायद ऑनलाइन में ऐसा हो रहा था, मे बी जो है ऑन कैंपस क्लासेस वो केस डिफरेंट होंगे। डॉक्टर सदर एक्चुअली ये कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप मार्क्स कंट्रोल करें। अगर किसी ने बहुत अच्छा पेपर किया है, जितने उसके मार्क्स बनते हैं आप उसको मार्क्स दें, इवन उसके 90 आते हैं आप उसको दें। लेकिन अगर किसी के नहीं आते, लेट्स सपोज किसी ने पेपर किया और वो 75% जैसे उसने किया है, तो ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बच्चों के ग्रेड्स अच्छे करने हैं तो आप उनको मतलब सिर्फ ग्रेड्स उनके इम्प्रूव करने के लिए आप दे दें। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं, जितना हाँ जी उतना बस आप दें, उसमें किसी की how much he or she deserve, yes, exactly जी, जो डिजर्व करते हैं वो आप दें, चाहे वो 95% है तो चाहे वो 65% है। अच्छा, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी मेरा क्वेश्चन था कि आप ग्रेड्स बहुत अच्छे दें, कभी नहीं कहेगी जो डिजर्व करता है आप उतने दें, और अगर वो 95 डिजर्व करता है तो फिर उसको 95 ही दें, लेकिन अगर कोई 65 डिजर्व करता है तो उसको 65 देते हैं। नहीं, डिजर्व की बात नहीं होता है ना कि मार्क्स, मैं सिर्फ जीपीए डिजर्व आई मीन पेपर जो पेपर खुद बता रहा होता है ना कि ये इसमें इतने मार्क्स बनने चाहिए। दूसरा मैडम अब ना मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये भी था कि मोड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है या टीचिंग का मोड है जो आप लोगों का क्या है, वो व्हाइट बोर्ड बेस है या पीपीटी बेस्ड होगा? हमें अवेलेबल होगा पीपीटीज को? दोनों अवेलेबल हैं, दोनों अवेलेबल हैं। बस यही 2-3 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर असलम, डॉक्टर सर, डॉक्टर बी, डॉक्टर आमिना, थैंक यू फॉर सच अ नाइस प्रेजेंटेशन एंड गाइडिंग अस फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू। हाँ जी, कुछ और कोई और बात रह गई हो? डॉक्टर असद साहब आप कुछ शेयर करना चाहें कोई फर्दर? इसमें ये बात सबको हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि इन टाइम हमें आना है और इन टाइम क्लास को छोड़ना। ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये बड़ा ज़रूरी है। अक्सर होता है कि ये क्लास लेट शुरू होती है तो लेट ख़त्म हुई, वो नेक्स्ट क्लास पे भी उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्लास का भी ख्याल करना है और अपना भी टाइम पूरा जो है वो करना चाहिए। बाकी माशाल्लाह ठीक है, सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इंशाअल्लाह ये हो दे विल डू देयर बेस्ट। हाँ जी, चलें, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला, आपने काफ़ी हेल्पफुल डिस्कशन दी हम सब के लिए। डॉक्टर असलम साहब फर्दर कोई बात रह गई है? सर क्लियर हो गया सब जो है ना ये।
डॉक्टर मिसबा मौजूद हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। डॉक्टर साहब नहीं, उनका थोड़ा सा लैपटॉप का इशू आ रहा था, कनेक्टिविटी उनकी नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से वो चली गई थी। अच्छा चलें जी। फिर इसको कंक्लूड करें जी, या कोई और जी बात सर, है? जी सर, कंक्लूड करें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, आपने पार्टिसिपेट किया। इसका पर्पस जो है वो प्योरली विजिटिंग फैकल्टी को फैसिलिटेट करना था कि कोई सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले जो हमारे जहन में कोई अगर बातें हैं तो वो क्लियर हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। आप जितनी दफ़ा पूछें मोर देन वेलकम, आप डिस्कस कर सकते हैं, बार बार हमसे पूछ सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए बनाया है कि अगर कन्वीनियंटली आप लोग टेक्स्ट कर सकें, किसी से पूछ सकें, तो ज़ाहिर है ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है और हमारी यूनिवर्सिटी के सेटअप के लिए इम्प्रूवमेंट है कि हम उसको टाइमली मैनेज कर लें। जो ओवरऑल सिस्टम है एग्जामिनेशन के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से, पेपर के हवाले से, वो हमारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके लिए विजिटिंग फैकल्टी को लास्ट सेमेस्टर में भी ईमेल प्रोवाइड की गई थी यूनिवर्सिटी आईडी के साथ। इस दफ़ा भी प्रोवाइड की जाएंगी जो नई फैकल्टी होगी। तो जो ऑलरेडी हैं वो वही ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। उसका पर्पस पहले तो ऑनलाइन के लिए था, ऑनलाइन क्लास लेक्चर डिलीवर करने के लिए था, लेकिन अब ज़ाहिर है आपने अगर रिज़ल्ट एंटर करना है तो उसके लिए भी वही यूएमएस ही यूज़ होगा। बहरहाल फर्दर जो भी गाइडेंस है वो टाइम टू टाइम भी आपको इंशाल्लाह हम कन्वे करते रहेंगे, आपके साथ राब्ते में रहेंगे। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हम जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम जितना इम्प्रूव कर सकें, जितना बेहतर कर सकें, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो क्लासरूम टीचिंग से इम्प्रूव हो सकती है। अगर हम फुल्ली प्रिपेयर्ड क्लासरूम में जाते हैं और सही तरह से डिलीवर करते हैं तो नो डाउट ये यही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और यही इम्प्रूवमेंट है जो हमारा पर्पज़ है। तो सारे जो है वो माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं। आई होप कि हमें इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे। हम इसको फुली जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे और इसको सक्सेसफुली इंशाल्लाह लेके चलेंगे। जो ये ओरिएंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर असद साहब ने प्रेजेंट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर असलम साहब हैं, डॉक्टर आमना, डॉक्टर मिसबा, आप लोगों ने भी काफ़ी एफर्ट की, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हाईलाइट की। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू और इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी फेस टू फेस फिज़िकल। कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो हमने टीचर्स को शायद कन्वे कर दिए हैं असलम साहब ने कि ये कोर्सेज़ विजिटिंग फैकल्टी के हैं, तो आप लोग अपना कंटेंट वगैरह डॉक्टर असलम साहब से ले सकते हैं, कोर्स आउटलाइन के हमारा कौन सा कोर्स है, उसकी आउटलाइन क्या होगी, अकॉर्डिंगली उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम टेबल भी आपसे शेयर हो जाएगा मीनवाइल। लेकिन कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो, या कुछ जो हमारे विजिटिंग फैकल्टी है उनको शायद अभी तक हमने कन्वे नहीं किया, तो क्योंकि मीनवाइल हमारी जो रेगुलर फैकल्टी है उसने भी आना है, सिलेक्शन बोर्ड हो चुका है, तो इंशाल्लाह कुछ हम आपको मीनवाइल कन्वे करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि सारा जो हमारा ये ग्रुप है, स्टाफ है, वो हमारे साथ रहे ताकि हम इसको कलेक्टिवली जो है वो काम को अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर कोई बात आपकी तरफ से है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।